My dear students, today again I have come with synthesis, and I have already uploaded videos on synthesis by using participle, adjective, nominative, absolutes, and today we'll see that how can we add two or more than two simple sentences by using infinitive. But before we proceed towards the this rule, we have to know what is an infinitive first. So let's see what is an infinitive. You know it very well that an infinitive is a non-finite verb. There are three non-finite verbs. They are gerund, infinitive and participle. And if you want to know in detail about these non-finite verbs, my videos are there. You can go and watch those non-finite verbs in detail. But today we'll discuss in short what is an infinitive. An infinitive is a non-finite verb, and the formation of infinitive is 2 plus V1. Understand? And the Hindi meanings, it comes, but before that let me tell you, it does the work of a noun and verb both. It does the work of a noun. So what is the work of a noun? To be a subject of a verb, to be an object of a verb, to be a complement of a verb. So these are the rules of a noun. So infinitive always work as a noun. Understand? So it can become subject of a verb, it can become object of a verb, like that. And infinitive also does the work of a verb also, by taking an object along with it. So you can understand it well, not here but in my videos. You go over there and watch them. But today we'll see that 2 plus V1 is an infinitive, and when we add two or more than two simple sentences to make one simple sentences, the Hindi meaning which comes, it would be like this: dekhkar or na ne ni. Understand? So dekhkar, it means that I am happy to see my parents. I am happy to see my results. Understand? She was overwhelmed to see her success. To see yani dekhkar, है ना? I am happy to find my lost ring. मुझे अपने खोई हुई अंगूठी को पाकर खुशी हुई. तो देखकर, पाकर. एंड कभी कभी ऐसे भी आता है देखने के लिए, खाने के लिए, खाने, खाने, जाने, है ना, खाना, इस तरह. आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, है ना. तो इस तरह भी ना भी आ सकता है और कर भी आता है. So, Hindi meaning is tarah aata hai. Now the question is, how can we know that by using this infinitive we can add two or more than two simple sentences? What are the rules? Not rules. What are what the condition should be there? How can we know that we have to add only infinitive to add the two sentences? How can we know? What are the conditions to use infinitive? So first of all, suppose that there are three sentences. Okay, three sentences means three finite verb. You know the characteristic of a finite verb, that in one finite verb there's a one simple sentence, there's one finite verb. You know it well. So it means that if there are three sentences, there would be three finite verbs. Okay. Now, how can we know that where we have to use infinitive 2 plus V1, to make it infinitive? So, three sentences are there. Suppose one sentence, if we take two sentences, one sub-sentence is showing reason. Okay. If two sentences are there and one finite verb and another finite verb. Okay. So if one finite verb is showing reason, we know that this finite verb is indicating towards this finite verb
that it will show a reason. दो सेंटेंस में अगर दो फाइनाइट वर्ब हो तो पहला जो फाइनाइट वर्ब है वो दूसरे रीजन का कारण बनेगा. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अगर रीजन हो, इफ देयर आर रीजन एंड पर्पस एंड रिजल्ट, these three condition, if the verb of one sentence shows reason, purpose और result, तीनों में से एक, अगर कोई सेंटेंस आपका रीजन दिखा रहा है तो उसके पहले हम टू लगाएंगे. दो में से अगर कोई पर्पस दिखा रहा है उसके पहले हम टू लगाएंगे, या कोई सेंटेंस का वर्ब अगर रिजल्ट दिखा रहा है तो उसके पहले हम टू लगाएंगे. यानी एक में रीजन, पर्पस और रिजल्ट. इसका मतलब ये नहीं कि तीनों सेंटेंस में आपका रीजन, पर्पस, रिजल्ट आएगा. एक वर्ब ऐसा रहेगा जो रीजन की ओर संकेत करेगा, एक वर्ब ऐसा रहेगा जो पर्पस की ओर संकेत करेगा, एक वर्ब ऐसा रहेगा जो रिजल्ट की ओर संकेत करेगा. तो जिसमें रीजन, पर्पस और रिजल्ट होगा उसी के पहले हमें टू लगाना है. अंडरस्टैंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी अबाउट द पर्पस. चलो पर्पस देखते हैं. चलिए रीजन पहले देख लेते हैं. लेट्स सी कि रीजन का यूज करके हाउ कैन वी ऐड टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस टू मेक वन सिंपल. सो इन दिस स्लाइड विल सी दैट आई हैव रिटन टू एग्जांपल्स ऑफ रीजन. यू नो, she was overwhelmed. She got first prize in the race. She was overwhelmed. She got first prize in the race. Okay. So here in this in this sentence we see that the second sentence is saying she was overwhelmed and she got first prize in the. This is the reason she got first prize in the race. That is why she was overwhelmed. ओवरवेल्म मीन्स बहुत अधिक खुश होना. वो बहुत अधिक खुशी थी, मतलब बहुत खुश थी. क्यों? शी गॉट फर्स्ट प्राइज इन द रेस, क्योंकि उसे फर्स्ट प्राइज रेस में मिला. सो दिस सेंटेंस शोज द रीजन ऑफ दिस सेंटेंस. शी वॉज ओवरवेल्म. व्हाई? बिकॉज शी गॉट फर्स्ट प्राइज इन द रेस. Since we see that the second sentence is showing the reason. So what we'll do that we have to change the second sentence. Understand? Not the first sentence, because if two sentences are there and in two sentences one sentence is showing the reason, you know, for first verb to be there. अगर पहला जो है दूसरा सेंटेंस अगर रीजन दिखा रहा है तो पहला वर्ब जो है उस रीजन के होने का जो है कारण है. तो ये रीजन दिखा रहा है, तो जो रीजन दिखाएगा उसी के पहले हम टू लगाएंगे. तो व्हाट विल डू दैट, शी वॉज ओवरवेल्म, शी गॉट फर्स्ट प्राइज इन द रेस. तो हम क्या करेंगे, विल राइट इट लाइक दिस, शी वॉज ओवरवेल्म्ड. अब यहाँ पे कहना है फर्स्ट सेंटेंस हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है. एंड शी अगेन हम नहीं लिखने वाले बिकॉज ऑलरेडी हमें सी लिखा है. तो दैट इज वाई वी विल डिस्कार्ड इट, विल नॉट राइट. अब गेट को हमें फर्स्ट पर्सन में लाना है, दैट इज फर्स्ट फॉर्म में लाना है, दैट इज गेट हो जाएगा. गॉट को गेट में लाना है. शी वॉज ओवरवेल्म, तो ये जो वर्ब हमारा गेट हो जाएगा इसके पहले हम टू लगा देंगे बिकॉज एक ये वर्ब है, एक ये वर्ब है. दूसरा वाला सेंटेंस का जो वर्ब है, दिस वर्ब इज शोइंग, क्या दिखा रहा है ये हमें कारण दिखा रहा है. तो हम क्या करेंगे, शी वॉज ओवरवेल्म्ड टू गेट, इसको क्या करेंगे, गॉट को हम गेट कर देंगे. टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द रेस, टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द रेस. अब हमने क्या देखा कि फर्स्ट सेंटेंस इट रिमेन एज इट इज, शी वॉज ओवरवेल्म्ड. वी विल नॉट राइट शी एंड विल चेंज गॉट इनटू गेट. गेट के पहले हम इन्फिनेटिव लगा के इसको टू बना देंगे, टू गेट फर्स्ट प्राइज. यहाँ पे टू गेट फर्स्ट प्राइज जो है, यहाँ पे अगर हम टू लिखते हैं,
टू गेट फर्स्ट प्राइज इन द रेस, ये एक फ्रेज बन गया है, अंडरस्टैंड, बिकॉज अब यहाँ पे इसके पहले टू गेट के पहले कोई वर्ब नहीं है ना, कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, तो यहाँ पे ये फ्रेज बन गया है। इस फ्रेज को हम उठाकर फर्स्ट सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे। She was overwhelmed to get first prize in the race, understand? तो ये रीजन दिखा रहा है। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखो, My father was angry, he heard the news of my failure. My father was angry, angry क्यों थे? He heard the news of my failure. तो सेकेंड सेंटेंस अगेन शोइंग द रीजन, इनके एंग्री होने का, नाराज होने का कारण सेकेंड सेंटेंस में हमें मिल रहा है। तो what we'll do it like this, my father was angry, we will not write he की जगह हम इसको he को डिस्कार्ड करेंगे, एंड उसके बाद heard जो है, heard को हम फर्स्ट फॉर्म में hear लिखेंगे और उसके पहले इन्फिनेटिव टू जोड़ेंगे। तो टू hear the news of his failure, फिर से ये फ्रेज बन गया, क्योंकि इसके पहले टू hear, अगर हम इसको अलग से जोड़े सिर्फ ही को हटा के हम उसको टू हियर कर दें, तो we'll see that if we write to here it becomes a phrase, understand? Phrase means there's no subject, no verb, okay? इसके पहले कोई verb ही नहीं है। to hear the news of is my failure, news of my failure। तो what we'll do, अब हम जो है इस सेंटेंस को इस तरह लिखेंगे कि my father was angry to hear the news of my failure, अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आपका रीजन दिखा रहा है कोई सेंटेंस और जो है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस को उसी तरह लिखेंगे और दूसरे सेंटेंस में हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को हटाकर उसके बाद उसको फर्स्ट फॉर्म में लाकर फ्रेज बनाकर उसी तरह हम जोड़ देंगे, ठीक है? कभी कभी ये उल्टा भी हो सकता है, यानी आपका रीजन दिखाने वाला सेंटेंस पहले हो जाएगा और ये वाला बाद में चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि पर्पस दिखाने वाले सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे। वी सी दैट दीज टू सेंटेंसेस शोज द पर्पस, ओके? These two sentences, they show the purpose. Tom kept some fierce dog. They will guard his house. So he, in first sentence we see that this is finite verb. Tom kept some fierce dog. So this verb says kept. Why did he keep? Why did he keep some fierce dog? They will guard his house. So second sentence, it shows the purpose that he kept some fierce dog. उसने कुछ जो है कुछ भयानक कुत्ते रखे अपने पास, किस लिए? कि वो they will guard his house, उसके घर की रखवाली करेंगे। तो second sentence, you know, we'll see that these second sentence is showing result, purpose, ये पर्पस दिखा रहा है सेकेंड सेंटेंस, यानी इस वर्ब का पर्पस क्या है? इस वर्ब का पर्पस है कि ये जो है मतलब इस वर्ब का ये वर्ब इस पर्पस को हेल्प करने में मदद कर रहा है कि दे केप्ट अ फियर्स डॉग। अब फियर्स डॉग को केप्ट करने का कारण क्या है? कि वो गार्ड करेंगे घर की। तो व्हाट विल डू दैट, फर्स्ट सेंटेंस विल राइट लाइक दिस, टॉम केप्ट सम fierce dogs. Tom kept some fierce dog, and in second sentence we will not write they. They means fierce dog. Okay, so we are not going to repeat this thing again. We will not write will also, because we have to add, you know, to in front of the verb. This is verb, will guard. Understand? Will is auxiliary verb and guard is main verb. You know, guard means not guard, you know, चौकीदार. Guard means, you know, रखवाली करना. This is a verb. So what we'll do that,
Tom kept some fierce dog. They will हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी they का मतलब जो है डॉग्स है और will वर्ब को हमें हटाना है. तो what will do, guard के पहले to लगा देंगे, to guard. फिर ये अगर हम to guard यहाँ पे लिखे to guard his house तो फिर ये एक फ्रेज बन रहा है. तो इस फ्रेज को उठाकर हम पहले सेंटेंस के साथ जोड़ देंगे. दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट दे और विल को हटाकर जो वर्ब है उसके पहले टू लगाएंगे और टू लगाने के बाद वो एक फ्रेज बन जाएगा. तो उस फ्रेज को उठाकर हम फर्स्ट सेंटेंस से जोड़ देंगे. सो टॉम केप्ट सम फियर्स डॉग टू गार्ड हिज हाउस. ठीक है, ये बन गया. दूसरा देखो, I went to the station. I went to the station. My object was to see off my brother. अब पहले वाले में जो वर्ब है finite verb went, ये जो है इसका क्यों गया? I went to the station एक कारण बता रहा है इसका कि my object was to see off my brother. सेकेंड वाला सेंटेंस फिर पर्पस दिखा रहा है आपका. पर्पस क्या है? पर्पस था कि ब्रदर को सी ऑफ करना है ना, ये पर्पस था. तो व्हाट विल डू अगेन, विल राइट इट लाइक दिस. आई वेंट टू द स्टेशन. आई वेंट टू द स्टेशन. अब यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट मतलब मेरा उद्देश्य क्या था? मेरे भाई को सी ऑफ करना. तो यहाँ पे मेरा उद्देश्य, इसको हम हटा देंगे यहाँ से. ठीक है, इसको मेरा उद्देश्य क्या था हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं स्टेशन गया ही इस काम के लिए, है ना. तो अलग से मैं मेरा उद्देश्य नहीं लिखूंगी. आई वेंट टू द स्टेशन, है ना. माई ऑब्जेक्ट वॉज, और वॉज को भी हटाना है यहाँ से. टू सी हमारा पहले से यहाँ पे है तो हम यहाँ पे टू सी ऑफ माई ब्रदर. अब हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब बचता है, दैट इज वेंट. I went to the station to see off my brother. I went to the station. My object was to see off my brother. तो यहाँ पे my object यानी subject और verb दोनों को हटा के हम to see, पहले से हमारा जो infinitive बना हुआ है उसको हम यहाँ से जोड़ देंगे. ठीक है, तो ये पर्पस दिखा रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे कि रिजल्ट दिखाने वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं. These two sentences will show the result. ओके, एक सेंटेंस में रिजल्ट होगा और दूसरा वर्ब जो है दूसरे सेंटेंस में उस रिजल्ट को पूरा करने में जो है उसकी तरफ इंडिकेट करेगा. अब देखो, पहला वाला सेंटेंस, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, एक बात जो इसमें खास है कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसके पहले जो है एक एडजेक्टिव होगा. जैसे यहाँ पे देखो, एक इगोइस्ट एक एडजेक्टिव है. पहले वाले सेंटेंस में एक एडजेक्टिव होगा और उस एडजेक्टिव के पहले हमें या तो एक्सेसिव या वेरी या इस तरह का मतलब एडवर्ब मिलेगा जो इस एडजेक्टिव के बारे में हमें जानकारी देगा. तो इस तरह के जो है, एक मिनट, तो इस तरह का जो एडजेक्टिव मिलेगा सेंटेंस में, उस एडजेक्टिव के पहले हमें कोई भी मतलब किसी तरह का भी एक एडवर्ब मिलेगा जो उस एडजेक्टिव के बारे में बताएगा कितना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो है, ईगोइस्ट है, या वेरी जो है, या एक्सट्रीमली है. तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पुअर है, वेरी पुअर है, एक्सेसिव ईगोइस्ट है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है ना. इस तरह का जो है पहले वाले सेंटेंस में हमें देखने को मिलेगा. And जो second sentence है, we'll find that in second sentence we will have either cannot or could not. So this is the what should I say? This is the condition of the sentence. So अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? Ram is excessive egoist. He cannot mix up with other. Understand? Ram is excessive egoist. He cannot mix up with other. So what we'll do that, we'll write it like this. Ram is, this excessive adverb will change into to adverb. So it will be to. This to is also an adverb, okay? Ram is
to, it shows it's semi negative word. Okay, to is called semi negative word. तो राम इज टू एक्सेसिव की जगह हम टू लिखेंगे. राम इज टू इगोइस्ट, मतलब इतना ज्यादा है कि वो नेगेटिव सेंस में आ रहा है. राम इज टू इगोइस्ट. अब सेकेंड सेंटेंस में व्हाट विल डू, यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, सिर्फ हमको जो एक्सेसिव को हटा दिया, उसकी जगह हमने टू लिखा. सेकेंड सेंटेंस में ही विल नॉट रिपीट because already Ram we have written, so we are not going to repeat this word. And Ram is too excessive. Will not write this cannot. This is again verb. Okay, this is helping verb. So we'll not write this helping verb. Instead of writing this helping verb, we'll take the main verb, that is mix up. तो ये जो मेन वर्ब मिक्सअप है, इसके पहले हम टू लगा देंगे, सिर्फ सिंपल टू लिख के हम इसको इन्फिनेटिव बना देंगे. तो राम इज टू इगोइस्ट टू, राम इज टू इगोइस्ट टू मिक्स अप विथ अदर्स. ओके, so Ram is excessive egoist की जगह we'll write Ram is too egoist to mix up with others. So we have created this sentence, and now let's see towards the another one. Ram is very poor. We see that, you know, first sentence and second sentence. In second sentence we find the result. Okay, and this is the cause. Ram इतना egoist है, ये कारण है, और कि वो जो है दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं हो सकता. अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला, सी इज वेरी पुअर, ये भी एक कारण है, और दूसरे में रिजल्ट है कि शी इज वेरी पुअर, वो इतनी गरीब है. सी वो बहुत गरीब है. शी कैन नॉट पे हर स्कूल फीस, वो अपनी स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकती. हिंदी में होगा वो इतनी गरीब है कि अपने स्कूल की फीस जमा नहीं कर सकती. तो विल डू द सेम रूल, दैट इज शी इज too poor. Will change this adverb very to too. Too is also semi-negative adverb. Okay, she is too poor, and second sentence she cannot will change, will not write, and this verb is main verb pay. इसके पहले हम to लगा देंगे. She is too poor to pay her school fees. Okay, तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. यू नो, बस आपको ध्यान ये रखना है कि तीन जो रीजन होंगे जिसमें हमें एडवर्ब टू यूज करना है. एक, अगर सेंटेंस कोई आपका रिजल्ट दिखा रहा है, कोई रीजन दिखा रहा है, या कॉज दिखा रहा है, तो इन तीनों के सेंटेंस में हमें टू लगाना है. समझ में आ रहा है? दो सेंटेंसेस में से अगर कोई एक सेंटेंस आपको रीजन दिखा रहा है, या रिजल्ट दिखा रहा है, या फिर आपका वो क्या कहते हैं पर्पस दिखा रहा है, तो उसके पहले हमें टू लगा के उसको इन्फिनेटिव बना देना. इस तरह से हमें सेंटेंस को जोड़ देना.